معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الحج کی آیت نمبر 49 سے 78 تک کا مطالعہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی اس سورۃ الحج کا مطالعہ بھی تکمیل کو پہنچے گا۔ تو ابتدا میں چند آیات کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرات ورزق کریم، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیاته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات 49 سے 78 تک کا ترجمہ اور تفسیر النور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اے لوگو، میں تمہیں واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں، تو جو ایمان لے آئیں اور نیک اعمال کریں ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے، اور جو ہماری آیات میں اپنے خیال میں ہمیں عاجز کرنے یعنی ہرانے کی کوشش کرتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول اور نبی بھیجے، جب بھی وہ کوئی آرزو کرتے تھے تو شیطان ان کی آرزو میں وسوسہ ڈال دیتا تھا، تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اللہ اس کو دور یعنی منسوخ کر دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیات کو پکا کر دیتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یعنی نبی کو جب وحی کی کر دی جاتی ہے تو اس میں شیطان کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ وحی کے ذریعے نازل ہونے والے احکامات پر عمل درآمد کرانے کے لیے نبی جو بھی حکمت عملی اختیار کرتے ہیں وہ نبیوں کی اپنی سوچ ہوتی ہے اور وہ خود فیصلہ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ نبیوں کی اس سوچ میں شیطان مختلف ذرائع استعمال کرتے ہوئے دخل اندازی کرنے کی کوشش کرے، تو ایسی صورت میں جو شیطان کی طرف سے اگر کوئی تدبیر آئی ہو تو اس قرآنی آیت میں اس کا رد کر دیا گیا ہے کہ نبیوں اور رسولوں کی تدابیر پر بھی شیطان کا کوئی بس نہیں چلنے دیا جاتا، تاکہ وہ اللہ شیطان کی طرف سے کی گئی ملاوٹ کو فتنہ یعنی آزمائش کر دے ان کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہو اور جن کے دل سخت ہو چکے ہوں، اور بے شک ظالم مخالفت اور دشمنی میں کہیں دور جا چکے ہیں، اس لیے بھی کہ وہ جان لیں جنہیں علم دیا گیا ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے یہ حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اللہ کے آگے جھک جائیں، اور بے شک اللہ ایمان والوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والا ہے، اور کافر اس سے ہمیشہ شک میں ہی رہیں گے یہاں تک کہ ان پر قیامت آ جائے گی یا ان پر منحوس خیر سے خالی دن کا عذاب آ جائے گا۔ اس دن بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی، وہی ان میں فیصلہ کرے گا، تو جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے وہ نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات جھٹلائیں ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہوگا۔ اور وہ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں پھر قتل ہو گئے یا طبی موت مر گئے، اللہ ان کو ضرور پاک رزق دے گا، اور بے شک اللہ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ وہ ضرور انہیں ایسی جگہ میں داخل کرے گا جس سے وہ راضی ہو جائیں گے، اور اللہ بے شک سب کچھ جاننے والا علم والا ہے۔ یہ تو اہل ایمان اور کفار کا انجام ہے، اور جو دنیا میں بدلہ لے اتنا ہی جتنی اس پر زیادتی کی جائے، تو اگر
इस पर ज्यादती की जाए तो अल्लाह ज़रूर इसकी मदद करेगा। बेशक वो माफ़ करने वाला, बख्शने वाला है। ये इसलिए कि अल्लाह रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है। और ये कि अल्लाह सब कुछ देखने वाला, सुनने वाला है, ये इसलिए कि अल्लाह ही हक है। ये कुफार अल्लाह के सिवा जिसको पुकारते हैं वो सब बातिल है, और ये कि बेशक अल्लाह ही बुलंदी और बड़ाई वाला है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह आसमान से पानी नाज़िल करता है तो ज़मीन सरसब्ज हो जाती है? बेशक अल्लाह नहायत लतीफ़, बारीक बीन और खुफिया तदबीर करने वाला और हर खबर रखने वाला है। इसी का है जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है, और बेशक अल्लाह बेनियाज और काबिल हमद है। यानी इसे किसी तारीफ की ज़रूरत नहीं है। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे लिए मुसक्कर कर दिया जो ज़मीन में है, और कश्ती को भी मुसक्कर कर दिया जो समुंदर में चलती है इसके हुक्म से, और ये भी कि वो रोके हुए है आसमान को कि वो ज़मीन पर न गिर पड़े मगर अल्लाह के हुक्म से। बेशक अल्लाह इंसानों पर नहायत शफीक और मेहरबान है। और वही है जिसने तुम्हें जिंदा किया, यानी आलम अरवाह में तुम्हारी रूह की तख्लीक करके अपनी रबूबियत का ऐद लिया और फिर तुम्हारी रूह को सुला दिया। अल्लाह ने जिसको इंसान की पहली मौत करार दिया गया है, जिसे जगा कर जिंदा किया, फिर वो अल्लाह जिंदगी का कुछ अरसा दुनिया पर गुजारने के बाद तुम्हें मौत देगा आलम बरज़ख, फिर तुम्हें जिंदा करेगा क़यामत के दिन। इन सब आयात रब्बानी और हक को जानने के बाद ही मुनहरफ होए जा रहे हो, क्योंकि बेशक इंसान बड़ा ही नाशुक्र है। हमने हर उम्मत के तौर तरीके कुर्बानी और इबादत के मुकर्रर कर दिए हैं कि वो इन पर चलें, ताकि वो इन इबादत और कुर्बानी के मामलात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना झगड़ें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की तरफ बुलाते रहें। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे रास्ते पर हैं, और अगर वो कुफ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ा करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें कि अल्लाह बेहतर जानता है जो तुम्हारे करतूत है। अल्लाह क़यामत के दिन फैसला कर देगा जिनसे तुम दुनिया में इख्तलाफ करते थे। क्या तुम्हें इल्म नहीं कि जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है, बेशक वो सब एक किताब में दर्ज है। बेशक ये अल्लाह पर बहुत आसान है, यानी तुम्हारी हर लम्हे की निगरानी करना और तुम्हारे हर अमल को लिखते रहना अल्लाह के लिए बहुत आसान है। और वो कुफ़ार अल्लाह के सिवा ऐसों की इबादत करते हैं जिनके बारे में अल्लाह ने कोई ऐसी सनद नहीं उतारी है, और इन्हें कुफ़ार और बुतों को इस पूजा का कोई इल्म भी नहीं है, यानी इनके पास कोई मंतकी या अकली दलील भी नहीं है। और जब इनको हमारी आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं तो तुम देखते हो इन काफरों पर नागवारी और बेदारी के आसार के करीब है कि इन अहले ईमान पर टूट पड़े जो इनको हमारी आयात पढ़कर सुनाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, क्या मैं तुम्हें कुफ़ार बता दूं जो तुम्हारे इस हाल से भी बदतर है? वो आग है अल्लाह ने जिसका काफरों को वादा दिया है, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। ऐ लोगों, तुम्हें समझाने के लिए एक मिसाल बयान की जाती है, इसे गौर से सुनो। वो जिन्हें अल्लाह के सिवा तुम पुकारते हो वो एक मक्खी भी तख्लीक नहीं कर सकते। बेशक इसके लिए सब कुफार इकट्ठे हो जाए, और अगर मक्खी इनसे को छीन ले जाए तो ये बुत इससे वो छुड़ा भी नहीं सकते। कितने कमज़ोर बेबस हैं तालब कुफार और मतलूब बुत भी। उन्हों कुफार ने अल्लाह की कदर ना की जैसी इसकी कदर का हक था। बेशक अल्लाह बहुत कुव्वत वाला, सब पर गालिब है। अल्लाह चुन लेता है अपने रसूल फरिश्तों से भी और इंसानों से भी। बेशक अल्लाह सुनने वाला, देखने वाला है। वो जानता है जो इनके सामने है और जो पीछे है, और अल्लाह ही की तरफ सब अमूर लौटा दिए जाएंगे। ऐ ईमान वालो, अल्लाह का शुक्र बजा लाते हुए कि इसने तुम्हें ईमान की दौलत अता की, झुक जाओ और सजदे में गिर जाओ। यानी तुम ये ना कहें समझ लेना कि ईमान का इकरार कर लेना ही काफ़ी है, बल्कि तुम्हें
इस ईमान की दौलत के तमाम तकाजे भी पूरे करने होंगे और अहकामात इलाही को खुश दिली से तस्लीम भी करना होगा और साथ ही इस पर मुकम्मल तौर पर अमल भी करना होगा और अपने रब की बंदगी करो। हर मामले में अल्लाह के आगे यानी सर तस्लीम काम किए रखो और नेक काम करो यानी खिदमत खल्क के लिए अपना तन मन धन लगा दो ताकि तुम फलाह पाओ। ये आयत सईदा है और अल्लाह की राह में जहाद करो जैसे जहाद करने का हक है। इस अल्लाह ने तुम्हें ईमान की दौलत के लिए चुन लिया है और दीन के बारे में तुम पर कोई तंगी नहीं है। यानी इबादत और कुर्बानी के तमाम अमूर वाज़े तौर पर तुम्हें बता दिए गए हैं और इन पर अमल करने के लिए तमाम शकूक व शुबहात को दूर कर दिया गया है। तुम्हारे जद्द अमजद का यही दीन था यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। इसी ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा था जो इससे पहले किताबों में भी है और इस किताब कुरान मजीद में भी है ताकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह हों और तुम लोगों पर गवाह हों। और नमाज पढ़ो और ज़कात अदा करो और अल्लाह को मजबूत पकड़ लो यानी दीन हक के तमाम तकाजे हमेशा पूरे करते रहो ताकि तुम इन कुफार और यहूद व नसारा पर गवाह बन सको। वो अल्लाह तुम्हारा मौला है तो क्या ही वो खूब मौला है और क्या ही खूब मददगार है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।